सर अभी तेलंगाना में A1 A2 का चर्चा बहुत हो रहा था। मैं उसमें एक्चुअली मैं नहीं जाना चाहता था, लेकिन उनको इतना उकसा रहे हैं। A1 A2 का जो बात कर रहे हैं, अभी तेलंगाना में सर जस्ट नाउ 2-3 मंथ्स बैक इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया, कौन दिया है सर? गलत क्या है? आपके सरकार ने दिया है। ये तो पूरा रिकॉर्ड पे है, आपने सरकार के लिए दिया है। और सर केरल में नहीं, माननीय मंत्री जी, आपने क्या कहा मेरे तो समझ में नहीं आया। नहीं, मेरा समझ में नहीं आया वास्तव में ये क्या है। सर तेलंगाना में A2 को A1 ना A2 वो जो बोलते हैं उनके भाषा में मैं उत्तर दे रहा हूं, क्योंकि आपने नाम लेने के लिए मना कर दिया। उनको भी मना है, हमको भी मना है, तो इसीलिए सर यही लोग देते हैं और हमारे ऊपर बोलते हैं। लक्ष्मण जी बैठे, तेलंगाना में दिया है नहीं दिया जी? हाँ, केरल में पहले कांग्रेस ने दिया और कम्युनिस्ट ने उसको कंटिन्यू किया। तो दाती का हाथ के बारे में कल बताया ना, यही है दाती का हाथ। हाथी का दांत। तो मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, हाथी का दांत। हाथी का दांत दिखाने का अलग, खाने का अलग। Sir, the Ministry of Renewable Energy, working in line with the vision of Panchamrit commitments of the Honorable Prime Minister at COP26. Honorable Prime Minister has outlined vision of energy transition of India at the 26th session of the Conference of Parties COP26 at Glasgow, known as Panchamrit. That is, to reach 500 gigawatt of non-fossil energy capacity by 2030. इसमें भी प्रश्न उठा है, कैसे करेंगे? तो मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन मैं शुरुआत में इतना ही कहना चाहता हूं। हमने तो 76 गीगावाट से 203 गीगावाट तक ऑलरेडी पहुंच गए सर। We have already reached, and how we are going to achieve further, I am going to explain it. सेकंड सर, पंचामृत में सेकंड हमारा टारगेट है 50% ऑफ पावर जनरेशन इंस्टॉल कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल सोर्सेज बाय 2030. Reduction of total projected carbon emission by 1 billion by 2030. Reduction of emission intensity of the economy, that is GDP, by 45% by 2030 over 2005 levels. Achieving target net zero emission by 2070. This is the target, and this is the Panchamrit. In line with Honorable Prime Minister's announcement, our ministry is working towards achieving 500 gigawatt installed electricity capacity from non-fossil fuel by 2030. मैं अभी बाद में एक्सप्लेन करता हूं सर, हाउ वी आर गोइंग टू अचीव इट। एंड जो सरकार के 9 प्रायोरिटीज है, 9 प्रायोरिटीज, उसमें एनर्जी सिक्योरिटी भी है। द बजट अलोकेशन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड, लास्ट ईयर इट वाज 10,000 and this year it is 20,000. All carry forward sub mila ke it is 21,330 crores. The Ministry of New and Mineral has 6 umbrella schemes. One is solar energy, bioenergy program for wind and other renewable energy, supporting program, hydrogen mission, storage and transition. There are schemes. One is, initially it was grid connected rooftops scheme. Now it is subsumed in PM Suryaghar. And the total
budget allocated both capital and revenue together, it is 21,230 rupees, sir. I thank Honorable Prime Minister and Finance Minister for such a huge allocation. This creates, when we are in the process of implementing, this creates employment opportunity in the renewable sector at the local level, reduce the dependence on fossil fuel and migrate the climate change, enhance the energy security and reduce the carbon emissions, promote the sustainable development. सर, इस 10 वर्ष में मैंने पहले भी जिक्र किया, एक ही सेंटेंस में अभी मैं थोड़ा डिटेल में जाना चाहता हूं. I am happy to share, sir, in last one decade from 2014 to 2024, under the visionary leadership of the Prime Minister, the installed renewable energy capacity has increased 165%, sir, from 76.38 gigawatt in 2014 to 2003.1 gigawatt as of now. For the first time, as I have said, we have crossed 200 gigawatt. During the last 10 years, the installed solar energy capacity has increased from 2.82 gigawatt in March 2014, sir. 2014 में it was less than 2.3 gigawatt, I can say, 2.82 gigawatt exactly. It has reached 85.47 gigawatt in June 24. Increase of around 30 times, sir. During the last 10 years, wind energy, it was 46 gigawatt. It was 21 gigawatt. Today it is 46.66 gigawatt. Share of thermal sources in the total installed capacity has come down from 67.69 in 13-14 to 54.46 in 2024. Share of non-fossil fuel in the total installed capacity has increased from 32.30 to 45.54. सर, मैं यही कहना चाहता हूं, जो हुआ है इसका तो अप्रिशिएट करना है ना. बाद में सजेशन देते हैं तो अपने 60-60 साल तक पावर में थे, हम तो स्वीकारते हैं. लेकिन इनका प्रॉब्लम क्या है सर? इनका प्रॉब्लम क्या है सर? जब थर्मल का जमाना था, कोयला उत्पादन नहीं करते थे. माननीय मंत्री जी, एक मामले में इनका एक्सपीरियंस आपके मुकाबले नहीं है. आपको उधर बैठने का ज्यादा एक्सपीरियंस है. आपको उधर बैठने का ज्यादा एक्सपीरियंस है. लेकिन अभी हम आगे जनता के आशीर्वाद से मोदी जी के नेतृत्व में इधर ही बैठेंगे सर. इसमें कोई पक्का है, इसमें कोई डाउट नहीं. सर, जब थर्मल का जमाना था, घोटाला किया, और इसके साथ ही साथ सर, वी वर द 4th लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ द कोल, बट कोल एक्सट्रैक्शन नहीं हुआ, हम इंपोर्ट करते थे. इंपोर्टेड बेस्ड पावर प्लांट बनाए थे सर. लेकिन आज वी हैव डबल द प्रोडक्शन ऑफ द कोल. आज न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का है, लेकिन ये लोग 10 साल कुछ काम नहीं किया. 6,000 करोड़ रुपीस का एक्सपेंडिचर किया. आज हमको प्रश्न करते हैं, पाठ हमको पढ़ाते हैं. Sir, you know nothing is going on record except what the minister says. No. सर, इनका पाप का फल है. हमने अभी कोल इंपोर्ट का जो है, हमने टोटल अभी सब्स्टिट्यूटेबल कोल इंपोर्ट नेक्स्ट ईयर से बंद होगा. मैं तो प्रीवियस कोल मंत्री के नाते कह रहा हूं, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं सर. सर, उसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं, द टोटल RE जनरेशन इन इंडिया इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 193.50 बिलियन यूनिट्स BU in
13-14 to 359.89 BU in 23-24, sir. This is Narendra Modi. सोलर पावर टैरिफ सर, ये तो मॉड्यूल नहीं बना रहे, पीवी मॉड्यूल नहीं बना रहे, सेल नहीं बना रहे, जो है इसमें जो हमने काम किया है वो भी मैं बताता हूं आपको। लेकिन सर, इन लोगों के कालखंड में कुछ किया ही नहीं, इसीलिए सब कुछ इंपोर्ट होता था दुनिया से। इसके कारण द सोलर पावर टैरिफ was 10 rupees 90, almost 11 rupees in 2010-11 सर। आज क्या है सर? हमने जो PLI किया है, हमने जो मेक इन इंडिया किया है, इसका स्तर बढ़ाया है, वॉल्यूम बढ़ाया है मोदी जी के नेतृत्व में। टुडे इट इज 2.60 per unit in 23-24 सर। And I am proud to share today that हम सब के लिए गर्व की बात है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी एनडीए के लिए नहीं, हम सब के लिए गर्व की बात है। इंडिया इज द 4th पोजीशन ग्लोबली इन रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी। वी आर द 4th रैंक इन द वर्ल्ड टुडे सर। वी आर द 5th इन द वर्ल्ड इकोनॉमी सर, एंड वी आर द 4th इन द रिन्यूएबल कैपेसिटी सर।